Hi, I'm Dr. Sheetal Agarwal. I'm a senior consultant obstetrics and gynecology working with Apollo Spectra Hospital and Rosebrook Hospital. It's a pleasure to come to this show and talk to you regarding common myths of in pregnancy, common questions asked during pregnancy. First of all, I must say my thanks to Shilpi. Shilpi Chandra is a very good friend of mine. In fact, we have been friends since last 15-20 years. And we have Shilpi have seen Shilpi grow. She's the founder chairperson of this Beseto Mark. I've seen her grow, and we are a group of basically a very ethic-driven people, and we follow rigorous ethics to treat the patients. So it is basically a group of like-minded people who are into this medical tourism, into this medical field to help people to help solve their problems. My sincere thanks to Shilpi for inviting me to this show and talking to all of you, just trying to burst some myths regarding pregnancy. So once again, I'm Dr. Sheetal. Let's start. So many a times, you know, the girls, they become pregnant and they come to me, ma'am, pregnancy. They're in fact very much worried. So I always tell them that pregnancy is the most beautiful phase in your life. Enjoy your pregnancy. It is once in a lifetime opportunity. Pamper yourself. जो तुम्हारी इच्छा करती है तुम खाओ. This is a time when everyone showers you with love and affection. Imagine, a life growing inside you. एक आदमी के अंदर तो life नहीं grow कर सकती. So, you're going to give birth to a live person. आप एक जिंदे इंसान को पैदा कर रहे हो. Nobody can, a male species cannot do it. It is only a female who has this right. So please enjoy your pregnancy. Don't think कि एक बीमारी है. Pregnancy is a normal physiological thing. Pregnancy is not a disease. It is not a बीमारी. जो लड़की एक बार पैदा हुई है, बड़ा होके उसको प्रेग्नेंट होना है, she has to carry the child. So this is a time when you pamper yourself. आप अपने आपको जो इच्छा करती है आप खाइए, जो इच्छा करती है आप पहनिए. This is a time when everyone is showering you with love, affection. So enjoy this phase. Don't bother कि मैं मोटी हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ. Remember, a woman looks most pretty when she's pregnant. When her life is growing inside her, there's a glow from inside on her face. It gives her an ethereal feel. She looks so pretty. She looks so beautiful. So enjoy this phase in your life. It's a very lovely phase. I must say that. Now coming to the important questions which मेरे patients आते हैं मेरे से clinic में पूछते हैं. So generally I'm going to discuss the important questions in pregnancy. So patients कहते हैं डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूं पर मुझे nausea vomiting तो हो ही नहीं रहा. तो इसका मतलब क्या मेरी प्रेगनेंसी ठीक नहीं है? So here I must tell you कि not every pregnancy is associated with nausea and vomiting. It is not necessary कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको उल्टी भी होगी, आपको nauseating feeling भी होगी. It is not. A little amount of nausea vomiting, we like it. हमें भी अच्छा लगता है. That means that fetus inside is viable. बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है. पर अगर आपको nausea vomiting नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बेबी अंदर ठीक ग्रो नहीं कर रहा. So just relax. It is not necessary कि if one person has those symptoms, आपको भी होंगे. आपकी मदर को हुआ है nausea vomiting, बहुत उल्टियां हुई हैं तो आपको भी होगा. ऐसा नहीं है. नहीं हो रहा, you are one of the lucky few जिसको नहीं हो रहा. फिर कुछ कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत excessive nausea vomiting होते हैं. Yes, that is the thing which we are worried कि क्यों इतनी उल्टियां हो रही है कि बिचारी she can't eat or drink anything. Then we have to evaluate. हम उसका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं. नॉर्मली अगर मोर देन वन प्रेगनेंसी अंदर होती है, जैसे ट्विंस हुए या ट्रिपलेट्स हुए या क्वाड्रुप्लेट्स हुए, तो उतना ही हार्मोन्स की लेवल बॉडी में ज्यादा होती है, उतना ही नॉजिया वॉमिटिंग होता है. सो यू हैव टू हर चीज का एक रीजन होता है, कॉज होता है. अगर आपको ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो मे बी यू आर मोर देन वन fetus inside. Maybe it could be it could be H mole. So excess of nausea vomiting is a cause of concern. Go to your gynae. She is going to evaluate you properly and come to a diagnosis.
So this is one myth that I have busted कि nausea vomiting होता है या नहीं होता है तो normal होता है, नहीं होता then also it is normal, ज़्यादा होता है तो क्यों होता है. Then coming to my second myth in pregnancy. जो हमारा second myth होता है कि what is patient आके बोलता है what is the मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कैसे कपड़े डालने चाहिए, what is the right type of clothing should I wear in pregnancy. So I always tell them कि wear loose comfortable clothes according to the climate of the region. जैसे हमारी कंट्री में I would like the ladies to go for long dresses, to go for gowns, nice gowns, to go for plazos, to go for long kurtis, but don't go for tight clothing. Tight clothing in whatever culture, wherever, whichever place you are, please avoid tight clothing. लूज फिटिंग क्लोथ्स होनी चाहिए. गो फॉर फ्लैट्स या वेज, जो आपके सैंडल्स होते हैं दे शुड हैव वेज हील, नेवर हैव पॉइंटेड हील्स. तो avoid it at any cost. Heels as such should be avoided, but suppose you just can't move out without heels, then go for wedge. Still I would say कि go for flat comfortable shoes, क्योंकि आप pointed heels डालते हैं, कई बार पैर मुड़ जाता है, आप गिर जाओ, कुछ हो जाए unnecessarily, इससे प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है. Okay, so comfortable clothes, use comfortable according to your climate, no tight clothes, footwear should be very comfortable, flat, soft, avoid heels at any cost if you can. Don't go for this pencil heels, etc. Then next question, डॉक्टर मेरा वेट कितना बढ़ेगा. आके सब मतलब इतनी वेट ऑब्सेस्ड फीमेल्स होती हैं, दे कम एंड आस्क मी, डॉक्टर मेरा वेट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा. So here at this platform I would like to tell you total weight gain in pregnancy is 12 to 15 kgs, maximum up to 18 kgs. But normally हम upper limit 15 लेते हैं, 12 kgs to 15 kgs. जब पेशेंट आता है हम उसका वेट चेक करते हैं और हमारे प्रिज्यूम करते हैं कि by the time she becomes full term, suppose she is 60 kgs she has started, so by the time she is full term she should be 75 to 77 kgs. How do we distribute this weight? Here I'll tell you कि हम प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. एवरी 3 months, फर्स्ट 3 months फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मिडिल ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. नॉर्मली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर देयर इज नो वेट गेन बिकॉज नॉजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, रादर 1 या 2 किलो कम ही हो जाता है पेशेंट का. अगर वो 60 kg के हो सकता है वो 58 हो जाए, हो सकता है वो 57 भी हो जाए. शी इज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग एंड अगेन मदर इन लॉ, फैमिली, दे बिकम वेरी वरीड. Especially the mother-in-law or the mothers, they'll come to me, हमारी लड़की का तो वजन ही नहीं बढ़ रहा, उसका बच्चा तो ठीक होगा ना बिल्कुल. So I tell them, just give time to your daughter. जो उसकी इच्छा करती है उसको खाने दो. पहले 3 महीने में कई बार nausea vomiting होता है. Whatever she wants to eat, she will gain weight. Then second trimester, that is 4th, 5th and 6th month, 5 kgs to 7 kgs weight gain होता है. And in the last trimester, 7 kgs to 8 kgs weight gain होता है. Okay. नॉर्मली हम पेशेंट को 3 weeks में बुलाते हैं या वंस अ मंथ बुलाते हैं. द वेट गेन ड्यूरिंग दैट टाइम शुड बी 2 kgs. अगर वो हम जो हमारे टेबल से चलते हैं, अगर 2 किलो वो हर विजिट में वेट गेन कर रही है, वी आर हैप्पी. 1.5 to 2 kgs अगर वो गेन कर रही है, बट सपोज शी इज नॉट गेनिंग दैट मच वेट, देन इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न. या उसने ज्यादा वेट गेन कर लिया, मेनी अ टाइम्स वो मेरे पास आई है 1 महीने में उसका वेट गेन 5 किलो हो गया, देन वी पुट हर ऑन डाइट. नो, नाउ यू हैव गेन दिस मच kgs ऑफ वेट. अवॉइड फ्राइड, फैटी, मीठा खाना बंद करो, बिकॉज वी वॉन्ट हर वेट टू बी कंट्रोल्ड. अगर वो ऐसे ही वेट गेन करेगी, सपोज 20 kgs उसने वेट गेन कर लिया, व्हाट विल हैपन? फ्लूइड रिटेंशन होगी, बीपी बढ़ जाएगा, शी विल बिकम प्री डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटिक, बच्चा लार्ज फॉर डेट होगा, डिलीवरी में दिक्कत होगी. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेट इन आवर ये प्रेगनेंसी में. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेट, वेरी इंपॉर्टेंट कि वेट इतना बढ़ना चाहिए. अगर इससे ज्यादा बढ़ेगा तो ये कॉम्प्लिकेशन होगी. और कब हम फुल स्टॉप लगाते हैं पेशेंट को कि नहीं, अब तुम्हें इससे ज्यादा वजन नहीं बढ़ना. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन. देन दे आस्क मी, डॉक्टर मतलब पेशेंट आएगा, प्रेग्नेंट होगी मतलब बेड रेस्ट, अब तो मुझे आराम नहीं करना है. अगेन दिस इज रॉन्ग. प्रेगनेंसी, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग. इसका मतलब ये नहीं कि आप बिस्तर पे लेट जाओ और घर में कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, तो आपका वजन अननेसेसरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ऐसा नहीं है. You have to do some amount of exercise.
So how do we do that? आप वॉक के लिए जाओ. Now this is COVID time. आप बाहर नहीं निकल सकते. ऐसे में आपको क्या करना है? 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर को, 15 मिनट रात को आप अपने घर के अंदर वॉक करेंगे. Provided you are not a case of threatened abortion, आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं हो रही है, आपको कोई और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो I tell my patients that you have to do walk. नॉर्मल टाइम्स में तो मैं उन्हें कहती हूँ आधा घंटा पौना घंटा सुबह वॉक करो, आधा पौना घंटा शाम को वॉक करो. Another very safe thing during pregnancy is exercise. Swimming. आप swimming करो. Swimming is a very good exercise during pregnancy. कि swimming में आपकी pelvic muscles की exercise होती है, तो normal delivery का chance बहुत अच्छा होता है. Obviously at these times तो आप नहीं swimming के लिए जा सकते, but during normal times, once we are through this COVID situation, if you know swimming and you are pregnant, it is a very good exercise. You can actually अगर आप swimming regularly करते हैं तो आपके normal delivery का chance बहुत अच्छा होता है. So this is, I told you what is the, how safe is exercise. Exercise is safe provided you don't have any pregnancy related complication, and what exercise should be done. Then next question जो मेरे से आके especially mother-in-laws, husbands, mothers पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसको डाइट क्या दें? Very common, they will come and ask me, हम अब pregnant हो गए, हम इसको क्या खाने को दें? So again I tell them, पहले 3 महीने जो उसकी इच्छा करती है उसको खाने को दो, क्योंकि she may be having nausea, vomiting, या उसको थोड़ा loss of appetite. After that, once the 3 months of the pregnancy is over, she goes into the safe zone. I advise my patients कि ये नहीं कि तीनों टाइम इतना प्लेट भर के खाना खाओ, इतना 4 रोटी खा ली हो रही है. You should take small but frequent meals. 3 meals के बदले go for 6 meals. This is how you should go for 6 meals. Every 2 to 3 hours eat something. Last meal should be over by 7-7:30. उसके बाद रात को सोने के टाइम पे 1 ग्लास दूध ले लिया. Why I am saying कि you should go take small frequent meals? Because during pregnancy हमारे जो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, particularly प्रोजेस्टेरोन, वो हमारे स्टमक एम्प्टिंग को डिले करता है. हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में काफी देर तक रहता है. सुबह का खाना शाम तक जाकर पेट से नीचे जाता है. तो अगर आप बहुत ज्यादा खाना एकदम से खा लेंगे, स्टमक फुल हो जाएगी, उतना ही गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम डिले हो जाएगा. अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, इट इज इजी टू डाइजेस्ट, जल्दी से वो स्टमक से नीचे जाता है, सो दैट यू बिकम हंग्री अगेन. एंड अगेन आई टेल माय पेशेंट्स टू अवॉइड ऑल दैट फूड एंड फ्रूट स्टफ्स व्हिच हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. बाय दैट आई मीन जिनसे आपका शुगर लेवल बढ़ता है. जैसे आजकल के सीजन में मैंगोज है, मैंगोज आप अवॉइड कीजिए, लीचीज अवॉइड कीजिए, और केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कैंड जूसेस, all these food stuff, they cause a spike in sugar level. तो अगर आप borderline diabetic हैं, तो there is a chance that you can become gestational diabetic. So what foods to be avoided in whatever pregnancy? चाहे आपका normal sugar है, आपकी कोई family history of diabetes नहीं है, I still advise my patients कि pregnancy is a pre-diabetic state. Pregnancy is a state कि आपका sugar level high होने के chance होते हैं. ऐसे conditions में आपको ये अवॉइड वो सारे खाना करना है जिससे कि आपका शुगर बढ़ जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नो, कैंड जूसेस जो डब्बे वाले जूसेस होते हैं बिल्कुल नो. आप फ्रेश जूस अपने घर में निकालिए, सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, मौसमी है, संतरे हैं, उनका फ्रेश जूस निकालिए. अभी आई एम नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटिंग दैट. कैंड जूसेस यस, कोल्ड ड्रिंक्स यस, एरेटेड ड्रिंक, सोडा यस, अल्कोहल एब्सोल्युटली नो, सिगरेट स्मोकिंग एब्सोल्युटली नो. क्यों मैं मना कर रही हूँ अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग? बट बिकॉज दे कॉज हार्म टू द चाइल्ड. दे कैन कॉज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस. इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, it can cause a preterm labor, it can cause abruptio placenta. मतलब बड़ी complications हो जाती है प्रेगनेंसी में अगर आप सिगरेट स्मोकर हो. Not only आप, अगर आपके फैमिली में कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, avoid going to that room because I don't want you to become a passive smoker also. It is not only active, even passive smoking is very harmful for your child. तो आपकी फैमिली में अगर आपका कोई भी any person in your family is smoking, see to it they don't smoke in front of you. See to it that you don't go to the room where they are smoking. This is very important tip that I tell my patients कि आप बिल्कुल भी उस जगह नहीं जाइए जहां पर स्मोक हो रही है. अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना है. खाने के लिए हल्का खाना एवरी 2 hours. फ्रूट्स में आप एप्पल लीजिए, आप बनाना ले सकते हैं, आप चीकू ले सकते हैं, आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, आप उनका जूस निकाल सकते हैं. सो
हर 2-2 घंटे में मिल्क, कर्ड इज वेरी गुड, बादाम, रोस्टेड बादाम को भिगो के रात को, सुबह भिगो के रात को आप बादाम भिगो के सुबह खाओ, इट इज वेरी गुड फॉर द बेबी. So these are the normal things which no one tells you but which you must know कि ये सब हो सकता है. So next very common question जो मेरे से पूछा जाता है, sex. I'm pregnant. Can I have normal sexual activity? Well, why you can't have normal sexual activity? Pregnancy doesn't mean कि आप sex नहीं कर सकते हो. Of course आप sex कर सकते हो, provided. See, what are the contraindications? आपको placenta previa, आपकी अवलनाल नीचे नहीं है, आप ब्लीड नहीं कर रहे हो, आपको थ्रेटन्ड अबॉर्शन नहीं है, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको आप अबॉर्ट कर सको, आपकी मल्टीपल जेस्टेशन नहीं है, आपकी ट्विंस, ट्रिपलेट्स नहीं है कि आपको सेक्स करने में दिक्कत हो. If you don't have these problems, of course you can have a normal sexual life, and it is always better कि lateral position में सेक्स किया जाए और with the woman on top. Not, it should not be that the man should be on top, otherwise टमी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा. The sex is safe. In fact, sex से फील गुड फैक्टर आता है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंड अ फीमेल फील्स गुड इन अ वे, शी फील्स पैम्पर्ड कि हाँ हस्बैंड मेरा अभी भी ध्यान रखता है, उसके मन में आता है यस आई एम माय हस्बैंड इज स्टिल लविंग मी, ही इज लुकिंग आफ्टर मी, सो दैट फील गुड फैक्टर इज देयर. तो सेक्स, आई ऑलवेज टेल देम प्लीज गो अहेड, हैव सेक्स बट इन लिमिट, एंड दीज आर द पोजीशंस व्हिच आई टेल माय पेशेंट्स कि आप इन पोजीशंस में कर सकते हैं. सिगरेट स्मोकिंग मैंने आपको बता ही दिया है, और डाइट के बारे में भी बता देना. व्हाट आर द चेंजेस इन प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या फिजिकल क्या मेंटल चेंज आते हैं. सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंज की. मैंने आपको बताया वेट गेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होता है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना कितना वेट वजन बढ़ता है. और क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में. सी, वंस यू स्टार्ट गेनिंग वेट, योर ब्रेस्ट इंक्रीजेस इन साइज. आपको जो नॉर्मली बाय द टाइम यू आर इन 7th मंथ आपका एंड होता है, आपका ब्रेस्ट साइज सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है. सो यू ऑलवेज चेंज योर ब्रा. योर ब्रा शुड बी एज पार विद योर ब्रेस्ट. ये नहीं कि आप टाइट ब्रा डाल रहे हैं. आपके निपल्स बिकम डार्क, पिगमेंटेड, एंड मेनी अ टाइम्स देयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल. सो पेशेंट आके मेरे से पूछते हैं मैम मेरे तो अभी से ही ब्रेस्ट सिक्रीशंस शुरू हो गए. इट इज वेरी नॉर्मल, डोंट वरी, ये होता है. दिस इज वेरी कॉमन कि ब्रेस्ट सिक्रीशंस आर देयर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. आपकी अगर आप टाइट ब्रा डालोगे तो ब्रेस्ट सिक्रीशंस जल्दी शुरू हो जाएंगी. चेंज योर ब्रा साइज फ्रीक्वेंटली. आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स गो फॉर कंफर्टेबल ब्रा. ट्राई बाइंग ब्रास विद द फ्रंट हुक, कई बार पीछे हाथ नहीं जाता है. फीडिंग ब्रास जो होती हैं जिनके ऊपर वो आगे से आप उनको निपल एक्सपोज कर सकते हो, गो फॉर दोस ब्रास. सो मेंटल ये होते हैं. देन समटाइम्स देयर इज पिगमेंटेशन इन द बॉडी. चीक्स पे क्लॉइस्मा आ जाता है, ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाती है. पेशेंट्स बहुत वरीड होते हैं कि मेरे चीक्स पे क्लॉइस्मा क्यों आ रहा है. सो आई अगेन टेल देम इट इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन एक्सेस इन द बॉडी. सो डोंट गेट वरीड. ये जैसे आपकी प्रेगनेंसी यू विल डिलीवर, ग्रेजुअली दीज क्लॉइस्मा मार्क्स विल गो. पेट में ब्लैक लाइन आ जाती है, मिड लाइन, लीनिया नाइग्रा जिसको हम बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन द बॉडी. दैट ऑल्सो गोज. अनदर थिंग विच इज वेरी वरीसम टू द पेशेंट्स इज स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं. तो वो ऑब्वियसली जो चीज स्ट्रेच हो रही है, अंदर बच्चा बड़ा होता है, यूट्रस बढ़ता है, वो आगे की स्किन को स्ट्रेच करेगा. तो गर्ल्स आर वेरी मच वरीड कि अभी स्ट्रेच मार्क्स आ गए, क्या करना है. See here I would like to tell you कि stretch marks are due to जो हमारे अंदर जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं स्किन के नीचे वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रेच मार्क आते हैं. तो परमानेंटली उनको डिलीट करने का कोई तरीका नहीं है. जो आपके वेरियस डर्मा क्लिनिक्स होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हम स्ट्रेच मार्क ठीक कर देंगे, हम ये कर देंगे, इट इज ऑल बुलशिट. स्ट्रेच मार्क्स हम अवॉइड कर सकते हैं, हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, पर अगर वो एक बार आ जाते हैं तो हम उनको ये नहीं कि हम उन्हें कहें कि दे विल गो अवे आफ्टर डिलीवरी. वो थोड़े थोड़े जरूर रहते हैं. सो हाउ टू अवॉइड स्ट्रेच मार्क्स? नरिश योर स्किन. मैं उन्हें बोलती हूँ सिंपल नारियल का तेल लगाओ, सुबह दोपहर शाम नारियल का तेल लगाओ, घी लगाओ, या एनी गुड मॉइस्चराइजर जो आपको लगता है वेरी गुड क्वालिटी मॉइस्चराइजर, किसी पेट पे दिन में 2-3 बार लगाओ. स्ट्रेच मार्क्स को हम इससे थोड़ा कम कर देंगे, पर वो आएंगे. जैसे जैसे अगर आपके डॉक्टर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो और ज्यादा स्ट्रेच मार्क आएंगे क्योंकि और स्किन स्ट्रेच करेगी. और एक बार स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, स्ट्रेच मार्क्स नहीं जाते, मैं जितनी मर्जी मेडिसिन दे दूं.
सो हम उनको सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं कि हम अच्छे से अपनी स्किन मॉइस्चराइज करें, नरिश करें, हम उसमें नारियल तेल लगाएं, गोले का तेल लगाएं. सो दैट इज वन वे ऑफ avoid decreasing the quantity amount of stretch marks. As I told you, जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है आपका वजन बढ़ता है, पर एक चेहरे पे अलग सा ग्लो आता है, एंड दैट ग्लो इज वेरी ब्यूटीफुल. दैट ग्लो इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इन आवर बॉडी. ऐसे आप अभी फेशियल करा कर आए हो. सो दैट ग्लो इज दैट प्रेगनेंसी ग्लो, ऑसम ग्लो होता है. सो you should always, a woman looks, हमारी बुक्स कहती हैं, a woman looks most beautiful when she is pregnant, and it is the fact, it is the truth. You look most beautiful irrespective of the fact कि आपका 10 किलो या 15 किलो वजन बढ़ गया, you are carrying a live fetus inside, you will still look very pretty because of that glow in your body, because of that glow on your face due to estrogen progesterone. Then what mental changes क्या आ सकते हैं during pregnancy? You know, especially during early part of the pregnancy, लड़की को लगता है कि she is very much tired, very much fatigued. उसको वो she just wants to sleep. उसको लगेगा कि उसको टेम्परेचर है, वो थर्मामीटर लगाती है, टेम्परेचर नहीं होता, उसको कांस्टेंट बॉडी एक रहता है, and she wants to sleep. So this is all because of pregnancy. I tell them कि it is normal. आपको अगर नींद आ रही है, आपका किचन में जाने का मन नहीं कर रहा, आपको स्मेल चढ़ रही है, it is very much normal. आप रेस्ट करो. जैसे 3 महीने निकलते हैं, दिस स्टेज ऑफ कांस्टेंट फटीग, कांस्टेंट फीलिंग स्लीपी, ये काफी हद तक ठीक हो जाती है. देन मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत होती है, स्पेशली इन द फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है. और किसमें निकलती है इरिटेबिलिटी? हस्बैंड पे, हु इज द फादर ऑफ द बेबी. मन करते कि उसको तो पीट ही डालो, उसको तो और कुछ नहीं तो मतलब हाथ में कुछ आ जाए उसको पीट डालो. सो इट इज वेरी मच नॉर्मल. गर्ल्स डोंट फील बैड अबाउट इट. इट इज नॉट बिकॉज द हार्मोन्स इन योर बॉडी आर प्लेइंग हैवक विद यू. आप इरिटेबिलिटी किस पे निकालोगे? अपनी सासू माँ पे तो निकालोगे नहीं, अपने बड़ों पे तो निकालोगे नहीं. बचता कौन है? या तो आपके भाई बहन बचते हैं, वो आपके पास होते नहीं है, पति बचता है. ठीक है, we tell the husbands also, try to understand these are all her mood swings, these are all due to her hormones in the body which is creating a havoc. So accept it. Try to pamper her. जैसे मैंने शुरू में बोला, this is the time that you know a lady should be really pampered. उससे पूछो उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या खाने की चीज अच्छी लगती है, उसको क्या पहनने को अच्छा लगता है, उसको मूवी लेके जाओ, उसको लंच पे डिनर पे लेके जाओ. Try to understand her. अगर उसको नॉजिया वॉमिटिंग हो रहा है, बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर. ये नहीं कि हमने भी तो इतने बच्चे पैदा किए, तुम्हारा कोई अनोखा बच्चा हो रहा है. never talk like this. Just be sympathetic, empathic with her. Try to relate to what she is going, because छोटी छोटी बात पे, जैसे मैंने कहा, मूड स्विंग्स होते हैं. she may feel like crying, उसको रोना आएगा. you don't know कब आपकी छोटी सी बात उसको पिंच कर जाए, फिर ये बातें एंड तक चलती हैं. so just be very sympathetic, just be very loving towards her, just pamper her a little. For the mother-in-laws especially, daughter-in-law is your daughter. So जैसे आप चाहोगे कि आप अपनी डॉटर के साथ रहो, उसका ध्यान रखो, वैसे ही आपको अपनी डॉटर इन लॉ इफ शी इज प्रेग्नेंट उसका ध्यान रखना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड हर मूड स्विंग्स. जो उसकी खाने की इच्छा करती है उसको बना कर दो. एंड लेडीज, फॉर यू ऑल्सो, डोंट थिंक दैट दिस इज यू नो कि मैं बीमार हूँ, आप बीमार नहीं हो. You are, it is a normal physiological thing. Enjoy your pregnancy, enjoy your pampering, enjoy the love and attention that you are getting from your family members, from your partner, from your parents, from your in-laws, from your friend circle, from your colleagues. Even आजकल तो corporates में भी pregnant ladies को बहुत वो दिया जाता है, उनको कहा जाता है work from home करो. आप अगर बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, ज्यादा देर बैठ के काम ना करो. एवरी 30-40 मिनट्स उठ के 1 मिनट वॉक करो. टांगे लटका के ना बैठो, टांगों के नीचे एक फुट स्टूल रखो सो दैट पैरों पे स्वेलिंग ना आए. वन रीजन ऑफ स्वेलिंग ऑफ द फीट इज अगर आप कॉन्स्टेंटली खड़े हो या पैर लटका के बैठे हो. तो this corporates are also very careful about the pregnant staff in their setup in their office, और पूरा ध्यान रखा जाता है. आपको खुद कहा जाता है कि हर 2-2.5 घंटे में उठो, उठ के कुछ खा लो. ट्राई टू अवॉइड कैफीन इनटेक. चाय कॉफी जितना अवॉइड कर सकते हो. आई नो काफी मन करता है चाय कॉफी पीने का, बट अवॉइड करो. स्टिक टू जस्ट 1 or 2 cups बिकॉज कैफीन हाइपर स्टिमुलेट करता है आपके नर्वस सिस्टम को, विच इज नॉट गुड फॉर द चाइल्ड. अगर आपको बहुत आदत है कि आप हर 2 घंटे में कॉफी पी रहे हो, तो माई सजेशन इज कि 1 कप सुबह लो, 1 कप शाम को लो, और एक बार बच्चा पैदा हो जाए फिर आपको जितनी लेनी है. सो दीज आर द
These are some of the common myths I wanted to share with you कि प्रेगनेंसी है, हमें उसको कैसे हैंडल करना है फॉर द इन-लॉज, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द पेशेंट, फॉर द पार्टनर ऑल्सो, क्या प्रिकॉशंस लेनी है so that you have a smooth, uneventful pregnancy. So now if you have any questions, any queries, please ask me. I'm there to help you to answer your questions. Do you have any? What can I do to help relieve morning sickness? मिसेस ओब्राय, मॉर्निंग सिकनेस के लिए नॉर्मली हम एंटी एमेटिक्स देते हैं पेशेंट को, और उससे उसको काफी रिलीफ मिल जाता है. अगर आपके डॉक्टर ने आपको एंटी एमेटिक्स नहीं दिए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, यू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर. अगर बहुत सिवियर है, शी विल डेफिनेटली पुट यू ऑन एंटी एमेटिक्स. और जैसा मैंने बोला है, ज्यादा देर तक भूखे नहीं रहना है, हर 2-2 घंटे में कुछ खाना है. रात को 7 बजे के बाद आपका मेन कोर्स 7 बजे 7-7:30 पे खत्म हो जाना चाहिए. उसके बाद स्टिक टू लिक्विड्स लाइक मिल्क हो गया, ठंडा दूध हो गया, और एनी लिक्विड है ना, नारियल पानी वगैरह, जस्ट स्टिक टू दैट. डोंट टेक योर मेन कोर्स आफ्टर 7-7:30. Any more questions? Okay. Fatima is saying, what level of exercise is safe for me to do right during the 3rd trimester? I've already discussed, Fatima. The safe is walking. और मैंने बोला है कि सिंस आजकल कोविड के टाइम पे आप बाहर नहीं जा सकते, अपने घर के अंदर every 15 minutes आप सुबह दोपहर शाम वॉक करो घड़ी देख के, and that is safe enough. Provided you don't have any placenta previa, threatened abortion, preterm labor की अगर हिस्ट्री नहीं है, तो आप वॉक करिए घर में, which is very safe. Any more questions, please? Okay, Mrs. Khan is saying, should pregnant lady run certain genetic tests for the baby? Well, Mrs. Khan, we normally do quadruple marker. Level 2 scan के साथ हम quadruple marker करते हैं at 19 to 21 weeks, and at 11 to 12 weeks हम double marker करते हैं with 11-month scan. इन दोनों टेस्ट से, दोनों अल्ट्रासाउंड और दोनों ब्लड टेस्ट से हम 99% तक एश्योर हो जाते हैं कि बच्चे को कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन नहीं है. अगर हमारे ये टेस्ट्स में कुछ गड़बड़ आती है, then we move ahead and we go for non-invasive tests. Any more questions? Okay, Mrs. Khanna is saying, is there anything a pregnant woman can do to help the baby come if she is overdue? वॉक करो. अगर आप ओवरड्यू हो, हम नॉर्मली 1 week to 10 days तक, ओवर 1 week तक हम ओवरड्यू हो सकते हैं. आप वॉक करो, अपने आप को एक्टिव रखो, डू पेल्विक एक्सरसाइजेस, कीजेल एक्सरसाइजेस करिए. मैं कहती हूँ बेस्ट होता है कि आप अपने घर में पोछा लगाओ टांगों के बल पे बैठ के, या इंडियन टॉयलेट यूज करो. इससे आपकी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है, एंड इट रियली हेल्प्स फॉर द बेबी टू कम डाउन एंड टू इनिशिएट लेबर. Okay, Mrs. Arora is saying that her sister is pregnant with a second baby. Will her previous delivery conditions or complications affect this pregnancy in any way? Well, Kashish, you never told me what complications she had in her first delivery. अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, अगर डायबिटीज है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस सेकंड प्रेगनेंसी में होती हैं. अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में होने के चांस होते हैं. अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में डायबिटीज है, सेकंड प्रेगनेंसी में होने के चांस होते हैं. So you tell me what complications she was having in first pregnancy before I can move ahead. Any more questions? Thanks, Mrs. Mahmoodi. I really like your comment. So my number will be flashed just now. In case you have any queries, you can always book an online consultation with me. I practice in New Delhi, in South Delhi. I work with the Apollo Spectra Hospital, Kailash Colony, and with the Rosewalk Hospital, Panchsheel. I deal in high-risk pregnancy and gynae endoscopic surgery. So you have any queries, any problems relating to your infertility or your pregnancy or even gynae malignancy, my number is flashed. You can please consult me online. I'll be always there to help you. Thank you very much.